In Ujjain, an ancient city of India, a star was born in the year 1966 to Malti and Vasantrao Bhawalkar. This star, the youngest amongst three siblings, was named Uday, which means to rise, to ascend, to arrive. From a very young age, the young Uday was drawn to music. He was first influenced by his own sister, who was taking music lessons at that time. हम लोग सन 75 में जब बहादुरगंज में आए तब उदय की उम्र थी 8-9 साल की। तो उस समय ये देखने में आया उसका कि उसकी बहन मीना जब रेडियो पर संगीत लगाती तो ये स्वाभाविक रूप से संगीत की ओर आकृष्टित होता। हमारे गुरु प्रमोद शास्त्री जी घर पर मुझे सिखाने आने लगे। उस समय कई बार उदय खेलते खेलते हमारे पास आके बैठता। अब वो बैठने के बाद मुझे ऐसा पता नहीं लगा कि ये उस चीज़ को पकड़ रहा है, पर इसने वो सब ले लिया और फिर मैं जब जब बैठती तब उसको लेके बैठती। तो छोटा सा बच्चा ताल दे रहा है, ये चित्र मेरे आँख के सामने से कभी नहीं जाएगा। One morning, at the age of 15, he came across an advertisement in the neighbor's newspaper, which led him to his gurus, Ustad Zia Mohiuddin Dagar and Ustad Zia Fariduddin Dagar, at the Alauddin Khan Sangeet Academy in Bhopal. 4 years of rigorous training at the academy led him to his first concert at the Uttaradhikar program in Bhopal. तो इसके बाद ऐसा है, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद फिर गुरुजी ने पूछा, बड़े उस्ताद ने पूछा कि तू क्या करेगा, अब तेरे को क्या करना है? तो कहने लगा मैं म्यूज़िक करूँगा। तो ये इधर का एकेडमिक वगैरह कुछ नहीं करना तेरे को? नहीं, मुझे नहीं करना है। तो इस तरह से फिर इन्होंने मोहिउद्दीन डागर उस्ताद ने ये ऐसा सोचा कि फिर तू तो मेरे साथ चल, तेरे को यही करना है। तो अपने साथ गुरुजी ले गए। तो तब से फिर अब गुरुजी के सेवा में, और वहाँ पर जब वो लेते थे इनको तो सिखाते थे। और दूसरी बात, मतलब केवल ध्रुपद संगीत नहीं, तो उसके साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी बड़े उस्ताद ने उसको दी। ज़ैमुद्दीन डागर साहब के जो कुछ स्टूडेंट उनके बहुत चहीते थे, और उन चहीतों में से एक उदय भवलकर भी थे। उदय ने बहुत मेहनत की, और मेहनत के साथ साथ उसने अपने गुरु के परिवार की इतनी सेवा की है, और गुरु के परिवार, मतलब उदय के परिवार ने भी, आप किसी के दिल में जगह तभी बनती है बच्चे, कुछ चीजें रह जाती है। In 1987, the legend Ustad Nasir Aminuddin Dagar Sahab heard Uday perform for the first time. He was so delighted that he awarded Uday a gold medal for his splendid performance. You know, formerly Dagar Sahab used to say that he is very much afraid for the future of Dhrupad in India, because the people who appreciate it are less and less. And then when he came back in 1983, he was very excited, and he said that, he had met this young person who was 15 or 14 or 15 in Bhopal. And he was such a good singer and had such a good attitude that for the first time he felt there was a future for Dhrupad, And sure enough, after
10 years when Uday came to Seattle for the first time, we saw that really Daga Saab's prediction had come true. And I clearly remember from the late 80s when you came home and we stayed together, and how Mataji looked upon you as the elder son, and those days we had fun. And more than that, I remember the time when Bade Ustad passed away, and how we used to go down to Mama's house and get up in the morning and do our riyaz. I remember there was a call for a concert and you went for the concert. When you came back, you had this look on your face, and I asked you whether you cracked it, and you just smiled. You didn't say anything because you were shy to say anything. And I realized that a musician had come into its own. So I think after that you never looked back. You went straight ahead. Udayji took the grand tradition of Dhrupad both as a performer and as a teacher far and wide across countries and continents, making a place in the hearts of all maestros, gurus and audiences. Udayji has been loved, cherished and honored by many. मला असं वाटतं की उदय भवाळकर यांचं सादरीकरण नेहमीच लोकांना आनंद देत आलेलं आहे. प्रसन्न मुद्रा, एकचित्त मन, आपल्या सादरीकरणावरती ठाम विश्वास, गुरूंनी सांगितलेली आजपर्यंतची विद्या तीच पुढच्या पिढीपर्यंत तशाच रीतीने, त्याच तन्मयतेने, त्याच उदार भावनेने पुढल्या पिढीकडे सुपूर्द करणारे असं व्यक्तिमत्व उदय भवाळकरांचं आहे. For me, somehow, he represented a slightly gentler form of the music. His singing is just so magnificent because, in a sense, it takes one out of one's routine, everyday, mundane life, and it lifts one to a level which is really almost an ecstatic level. वो सहज मतलब गाना, मतलब कोई एफर्टलेस आवाज़, माने आप उदय भवालकर सा लगाते लगेगा कि उदय भवालकर गा. मैंने ऐसे उनके प्रोग्राम सुने हैं कि उन्होंने खर्च लगाया और लोगों ने इतनी ताली दे के प्रशंसा की है. ऐसे अपने ध्रुपद शैली का आम लोगों के ऊपर इतना असर करना ये बहुत मुश्किल बात है. उदय एक ऐसा बच्चा वह जो ध्रुपद धमार को बहुत ही अच्छे तरीके से गा रहे हैं और अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, मगर उसके गाने में शब्दों की स्पष्टता और स्वरों का लगाव और शब्दों को जिस तरह से वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, सचमुच में अपने गुरु का वो बहुत ही बड़ा भक्त और शिष्य होने का रिश्ता उसने निभाया है. इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, रीटा की रिकॉर्डिंग के वक्त हम लोग काम कर रहे थे और उनका गाना इतना अच्छा लग रहा था कि रेणुका शाह ने, जो डायरेक्टर हैं, और मैं, हमने कहा उदय जी ऐसा लग रहा है कि आपको बैठ के अभी एक कॉन्सर्ट ही सुनना है, ऐसा एक माहौल आपने बना दिया. तो बोले अच्छा ठीक है. और वहीं के वहीं उन्होंने पूरा एक 15-20 मिनट का एक कॉन्सर्ट कर दिया हम लोगों के लिए, और बस वही थे और तानपुरा और कुछ नहीं, और इतना हम तो खो गए थे उसमें. तो ऐसे कलाकार हैं उदय जी, उनकी आवाज़ में इतनी रूधारीपन है, इतनी तासीर है जो बहुत कम देखने को और सुनने को मिलती है.
गाने के साथ साथ बहुत कुछ उसमें ऐसी बात है जो आज के बच्चे लोग अगर उसे अपनाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। उसका शांत स्वभाव, हंसमुख, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना और हमेशा सभी बड़ों के साथ इस तरह से मिलते हैं कि जैसे वो छोटा बच्चे की तरह हो जाते हैं। And I remember an incident when he was singing something so delicate and so fine, and at that time there was a point when you just felt like applauding, but at the same time you didn't want to disturb him. And at that time he knew that audience is likely to applaud, and his eyes were closed and he just raised his hand and wanted the audience not to applaud so that his musical trance would not be disturbed. And I think it is quite a rare occasion that a musician requests his audience not to applaud. जो ईश्वर के यहाँ से रिवार्ड मिलता है, जो गुरु की तरफ से रिवार्ड मिलता है, वो गुरु कहता नहीं है, उसकी आंखें कह देती हैं। सबसे मुझे जो उदय का अच्छा लगा, उसने अवार्डों के लिए नहीं गाया, आज भी अवार्डों के लिए नहीं गाता, वो गाता है रिवार्ड के लिए, और रिवार्ड से बढ़ के कुछ नहीं है। संगीत के लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा दूसरा कुछ? गुरु शिष्य परंपरा गुरु और शिष्य के दिल में होती है, वो एक प्रेम है, पिता पुत्र का प्रेम। Teaching now for the last 30 years with his philosophy of Swarakula, he has compassionately nurtured students in Pune. He is also a resident guru at the IITC Sangeet Research Academy, Kolkata, and a guru at the Bengal Parampara Sangeetalaya, Dhaka. After the demise of Aminuddin Dagar साहब, जिनका गाना सुन के हम रोते थे, ये घराने का, ये गायकी का जो एक फ्लैग है, उदय जी will keep it continuously high and high and higher and highest. हमें आप पर गर्व है, आपके संगीत पर गर्व है, और आप जो ध्रुपद के लिए मेहनत कर रहे हैं कि उसका प्रचार दुनिया के कोने कोने में पहुँचे, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज उनके जन्मदिन पर मेरा हार्दिक आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ की माँ सरस्वती की कृपा रहे, वो शतायु हो। हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए है। बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे कलाकार हैं, तो हमारी यही इच्छा है कि सभी लोग मिलके एक अच्छे कलाकार का, एक अच्छे इंसान का बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्सव के साथ ये वर्षगांठ मनाया जाए। भगवान आपको लंबी आयु दे और आप ऐसे ही गाते रहें और हम लोगों को खुश करते रहें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, हैप्पी बर्थडे। सालगिरह मुबारक, और यू आर नॉट गेटिंग ओल्ड, यू आर जस्ट गेटिंग इनटू द राइट एज फॉर योर म्यूजिक। टेक केयर, हैप्पी बर्थडे। ये तो खोज है, यात्रा है। आप हमेशा you're always searching for better. अभी और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए, वो स्वर चीज ही थी। शरारती नहीं थे, शांत स्वभाव के ही थे। उदय जी का तो गाना सब लोगों ने सुना है, मगर कभी अगर मूड लग गया तो खाना भी इतना बढ़िया करते हैं उदय जी कि वाह वाह। और हम लोगों से तो उनका इतना प्रेम है कि हमेशा उनका SMS आता रहता है, दादा कुछ भेजिए, तो मैं उनको जोक्स भी भेजता हूँ और बहुत मस्ती आती है हम दोनों के बीच में। नहीं तो 2.5 मिनट को एडिट करो, कहाँ से काटोगे? नहीं, जो खबरदार, मेरा कोई एडिट